So today we are doing the yearly prediction for the year 2023, and I decided to use my psychic deck because I wanted to make it a little more than the usual tarot reading. So whenever I want to add some value, I try to use my psychic decks. Now in this particular case, what I've done is I've divided the entire deck into three different smaller sections, and in that I have placed crystals. Now this is the usual technique which we use using crystals. We try to segregate the deck. So we have deck number 1 with amethyst, purple color energy. So people with deck number 1, they'll focus on amethyst. Second, we have green aventurine, second deck. Third, we have clear quartz. So first, second and third. So I want you to just take a while, connect with the energy of the deck, because after that the entire reading will depend on the deck which you have chosen, like if it is amethyst or green aventurine or clear quartz. So don't go by the properties of the crystal, just focus on the color while picking up the deck number 1, 2 and 3. And so by now, I guess you have picked up your crystal, and what I would do now is start reading for deck number 1. Since we have a long way to go, so what I would do is I will start from deck number 1, amethyst. So for deck number 1, let us look at what do they carry in their energy in 2023. So I am saying, what do they carry in their energy? So from 22 to 23, what are they carrying? So for deck number 1, the year 2022 would be like we are shedding some energy, we are shedding some expectations and willing to compromise on certain things which we thought, or habits or people which we thought would benefit us, but by 2023 is approaching, we have decided that we have to let go of certain things of the past. And believe me, this sacrifice or this leaving certain people or certain habits or certain expectations will help you a long way, because we see rejoice in celebration card for you, and which is coming in 2023. So that means this compromise which you might think today will not just go waste, or it's actually not a compromise. It's just called shedding of the energy, letting go of the past. So you'll be free from the past energy and going forward with a lot of bright colors and new way to look at life. Happiness, contracts, projects, new people in your life, and celebration of a different kind on the cards. So when we look at career, from wherever we are in 2022, we are moving forward to a new, जैसे हम बोलते हैं एक नए आयाम या एक नए पड़ाव की ओर, because the next card in this guidance sector is transformation. We are getting transformation, so that means we move to a next level in our career, which brings in a lot of changes, and these changes will help us grow. We become little more matured, right, from what we have done in 2022. So we would be doing better projects, better life, and better movement in our career is seen in 2023. So now in the guidance of career, I got victory and success as the card. So victory and success जब हमारे पास आता है, तो ये हमारे लिए मिड ऑफ द ईयर में पोजीशन कर रहा है खुद को. सो मिड ऑफ द ईयर में अगर ये खुद को पोजीशन कर रहा है, इसका मतलब हमारे को जितनी एक्सपेक्टेशंस 2023 से है, तो मेक श्योर फरवरी में ये स्टार्ट होता है और जून में हम अपने आप को एक स्टेशन्ड कंफर्टेबल पोजीशन में देखते हैं. एंड बाय दैट टाइम देयर वुड बी अ लॉट ऑफ चेंजेस विच वी वुड कॉल ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर हमें जनवरी फरवरी में कुछ बहुत मेजर अचीवमेंट्स नहीं मिल रही, तो वी डोंट हैव टू थिंक कि ये साल भी
2022 जैसा उतना बढ़िया नहीं होगा. We will see that there is a lot of accelerated movement when we are looking at the personal relationship sector. In the terms of personal relationship, I see that अगर किसी के रिश्ते 2022 में यहाँ कहीं स्टॉल हुए तो वो या वो साथी आप आगे देख रहे हो कि 2023 में मिड हाफ के यानी जून के बाद हम उस रिश्ते को फिर से बढ़ता हुआ देखते हैं. और एल्स आई सी यू टैकलिंग विद द थिंग कि ये पुराने साथी के साथ हमें आगे बढ़ना है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हार्ट एक एंड लॉस रहा है, कॉम्प्रोमाइजेज रहे हैं इन द पास्ट. और जैसा मैंने बोला कि उस एनर्जी से अब आपको वीन ऑफ करना है. तो अगर हम एक्सेलरेटेड मोशन को यहाँ लेके चलें तो नए साथी का यहाँ आना अगस्त में हम एंटिसिपेट करते हैं, which is like very very good when it comes to, because this person will take your life forward और हम पीछे से अब आगे की ओर मूव कर जाएंगे. Now I look at, एक है ब्लॉकेज, एक है आपकी गाइडेंस. सो ब्लॉकेज का मतलब है कि जब भी बैलेंस हमारे पास आना, यानी ऑल द 5 एलिमेंट्स, यानी मनी, हार्ड वर्क, यानी वॉन्ड एनर्जी, यानी कि अगर हम हार्ट सेक्टर की बात कर रहे हैं, करियर की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, एसेट बनाने की बात कर रहे हैं और एक जीवन साथी की बात कर रहे हैं, इन सभी, और हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इन सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करने का समय आता है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मार्च और अप्रैल के महीनों की बात कर रहे हैं. उस वक्त हमें सभी चीज़ों को साथ में यानी तवज्जो रखकर आगे बढ़ना है, सो दैट हमारा साल एक बैलेंस्ड वे में ख़त्म हो, ना ही सिर्फ पर्सनल की तरफ ज़्यादा या ना ही सिर्फ मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट यानी करियर की तरफ या पैसे की तरफ भागदौड़ में ज़्यादा विलीन होना है. हमें अपने आप को एक बैलेंस में मेंटेन करना है, बिकॉज ये साल बहुत ही प्रोग्रेसिव और अचीवमेंट मोड पे ख़त्म होता है. सो जब ये साल बहुत ही अचीवमेंट मोड पे ख़त्म होता है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या क्या काम निर्धारित है, उन सभी का होना बहुत ज़रूरी है. सो ऑन दिस नोट आई विल टेल पीपल उनकी गाइडेंस में, आई विल जस्ट पुल आउट वन कार्ड फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स, व्हाट एंजल्स हैव केप्ट फॉर देम. शेड ओल्ड स्किन. This is the first card which I had drawn out for the deck number 1, and actually this happens to be the last card. So that means energy is trying to say one and the same thing to you कि भाई आपने जो पुराना पास्ट है उसको छोड़ देना है. तो यानी कि नई जॉब, नए प्रोजेक्ट, नए साथी, नई अप्रोच और नए जीवन की तरफ मूवमेंट होगी for deck number 1. So now quickly we will move to deck number 2. So here we are for deck number 2, people who chose Green Aventurine. Okay, so let's see what have they carried in 2023. Wonderful. So deck number 2, fulfillment of wishes. That means in 2022 के लास्ट में हमारे कुछ गोल्स जो रह गए वो फाइनली जनवरी फरवरी would be the months where we will see the results happening, and fulfillment of wishes is the card which is drawn by deck number 2. So when we say fulfillment of wishes, मतलब ये 22 का काम है जो 23 में results दे रहा है, राइट? तो दैट मीन्स हम तो सीड 22 में डाल चुके हैं, वो एनर्जी ही कैरी फॉरवर्ड होके हमको 2023 में हमारे उन सभी गोल से आने वाला प्रॉफिट, और ये मैं करियर की तरफ बता रही हूँ, तो उन सभी गोल्स में से जो मैंने एस्पिरेशंस रखी वो सब कंप्लीट होंगी 2023 में. सो वी सी दिस ईयर इसकी टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी वेरी वाइब्रेंट फॉर डेक नंबर 2. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ करियर, ऑल्दो ये डेक काफ़ी लाइट है नंबर 2 वालों का, बट मुझे लगता है हमें जल्दी ही इनके रिजल्ट्स. ओके, सो if I see the overall year which is summing up at fulfillment of wishes, यानी आपने जो aspirations रखी हैं वो complete होती हैं. So I am getting in the guidance a patience card which says immediately हमने उम्मीद नहीं लगानी कि बिल्कुल फरवरी में ही जैसा मैंने कहा हमें रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड बाय द वे लेट मी जस्ट मेंशन वंस अगेन ओवर हियर, जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि ये जेनेरिक रीडिंग्स होती हैं,
तो जो लोग ग्रीन एवेंचुरीन पे फोकस कर रहे हैं, मतलब 100% सबका ऐसा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मेजर पार्ट ऑफ द सेक्टर वुड बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो अब जैसे ये पेशेंस आ रहा है, दैट इज इंस्पायरिंग मी टू से दैट आइदर इट विल बी जैन फेब, सो आई गेट रिजल्ट्स इन फेब, or else then we are waiting for another few months and we are getting significant results in June. तो ये दो पार्ट्स में हमारे लिए चल रहा है. तो people who do not see February coming out in bright colors should now see, because material and spiritual prosperity या promotion या जो हमारा monetary growth था वो हमें मिलेगा around June, and that is for sure because we do see a lot of मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी कमिंग. तो ये जो मटीरियल एंड स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब होता है, सिंस इट्स अ साइकिक डेक, तो ये पर्सनल ग्रोथ को भी हमेशा एनहांस करता है. यानी हम किसी ऐसे की गाइडेंस, और ये डेस्टिनी कार्ड है, एंड इनफैक्ट आई वाज अबाउट टू एक्सप्लेन दिस ओनली, कि हम ऐसे किसी की गाइडेंस में जाते हैं या ऐसे किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं करियर में या ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर डेस्टिनी ग्रोथ और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स तो हमें देगी, साथ में हमारा वहाँ पर एक प्रॉपर एक्सपीरियंस भी इन्हांस होगा एज अ ह्यूमन बीइंग और हम ग्रो करेंगे. नाउ व्हेन वी लुक एट द प्राइवेट सेक्टर एंड व्हाई हाउ कैन वी लीव द लव सेक्टर, सो इस सेक्टर में भी डेक नंबर 2 is ahead, which is saying that triumph. So that means people who are wanting to get married will get a partner. So again destiny card हमने draw किया है, तो around June July we will see marriages getting settled, alliances getting settled, and another significant part before I read this, yes, so marriage for them will be a new chapter. Like people who get married will see life moving in a very different direction from July onwards. Now what I see here is that before we draw conclusions and before we fold deck number 2 that everything is very good and everything is very vibrant for them, let me just tell you their major blockages and the guidance. The major blockage for this group would be that they are holding on a lot of expression and lot of feelings inside. So this is the time of the year, say I would say, पुराने grudges clarify करने, और जो हमने होल्ड करके रखा है सेंटिमेंट या एस्पिरेशंस भी कई बार हमारे लिए बर्डन बन जाती है, तो इन्हें क्लियर करने का समय है 2020 थ्रू जैन फेब का पीरियड. यहीं से एक इम्पॉर्टेंट बात जो विच आई फेल्ट फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द कार्ड, ये किसी तीसरे की तरफ आकर्षण या किसी सेटल्ड वे में अगर हमारा रिलेशनशिप चल रहा हो तो उस एक नई तरह डायरेक्शन में आकर्षण, एक नई साथी की तरफ आकर्षण को आने से रोकने के लिए आपको इंडिकेशन है. दैट इज वेयर द ऑब्स्टेकल इज कमिंग फ्रॉम. सो डेक नंबर 2 को इस बात का ध्यान रखना है कि उनका जो सारा कुछ ठीक चल रहा है उसमें कोई एक नई टेम्पटेशन, यानी हम नौकरी में बिल्कुल सही चल रहे हैं और हमारे को अभी ही प्रमोशन मिली है, एकदम से कोई नया ऑफर सोच समझ के आप जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे. सिमिलरली अलायंसेस फिट हो रहे हैं, हमें एक अच्छा साथी मिल गया एंड वी आर प्लानिंग मैरिज, सडनली किसी नए का आना, फिर हम सोच समझ के डिसीजन लेंगे. ऐसा आपके कार्ड्स में गाइडेंस में भी बोला गया है. अगर मैं एंजल्स एंड एंसेस्टर डेक से आपके लिए गाइडेंस निकालूं, सो लेट मी सी व्हाट एंजल्स एंड एंसेस्टर डेक इज bringing out. So it is talking about ignite your passion, and we've drawn fire guardian. So that means it is talking more about sacral chakra, and again triumph being number 7, we are focusing on sacral chakra. और यहाँ पर बात हो रही है relationships, compatibility, sound वे में अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट को देखने की, ब्यूटी और सेल्फ के ऊपर भरोसा रखने की कि हमारे क्रिएटिव एस्पेक्ट्स और हमारी नीड्स एंड एस्पिरेशंस किधर जाती हैं. तो पुरानी भावनाओं को छोड़ने का समय ये है. विद दिस गाइडेंस आई थिंक वी शुड क्विकली मूव टू द डेक नंबर 3. So now we will go to the reading of deck number 3, clear quartz. So let me see what
डेक नंबर 3 वाले लोगों के लिए व्हाट दे हैव कैरिड फॉरवर्ड इन 2023, कुछ तो कूल। सो अगर पिछला साल हमने धोखे और परेशानियाँ और रिलेशनशिप फ्रंट, क्योंकि सबसे पहले रिलेशनशिप ही आया, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप फॉर देम। तो अगर पिछले साल कुछ धोखे, कुछ चीटिंग्स, कुछ परेशानियाँ रिलेशनशिप्स में देखी एंड वेयर वी थॉट दैट द पार्टनर वाज नॉट लाइक दैट, तो देन इस साल 2023 में हम एक ऐसी पार्टनरशिप और रिलेशनशिप को आते देख रहे हैं जिस रिलेशनशिप में डेफिनेटली मैरिज, डेफिनेटली आई वोंट से कि जो हुआ पास्ट में अच्छा हुआ, बट आई कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट आपको लगेगा कि ये अच्छा ही हुआ कि हम उस पार्टनर के साथ सेट नहीं हुए, इस पार्टनर के साथ सेट हो गए, बिकॉज फाइनली दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। ऑलराइट, सो दैट इज वन थिंग। तो कभी कभी कुछ ना मिल पाना या ना हो पाना हमारे लिए अच्छा रहता है, एंड दैट इज वेयर व्हेन द फ्यूचर इज रिवील्ड। ऑलराइट, तो ये पार्टनर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। पार्टनर के आने की साउंड आती है समथिंग अराउंड February, although yeah, so February is what I would say that you would see. But यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि इमीडिएटली जॉब चेंज करने के बारे में, यानी जनवरी में अगर सोच रहे हैं तो इमीडिएटली जनवरी में जॉब सीख करने के बारे में या शिफ्ट करने के बारे में ना सोचें, बिकॉज कुछ परेशानियां या फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है दैट वी वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। पीपल हु आर इन टीचिंग सेक्टर, हु आर इन क्रिएटिव सेक्टर्स, पीपल हु आर यूजिंग अ लॉट ऑफ साउंड एनर्जी, बिकॉज दिस एनर्जी रिलेट्स अ लॉट विद मी। तो ये एनर्जी, इसके ब्लॉकेज को अगर मैं देखूं, क्योंकि ये कई बार आता है, तो इट इज सेइंग दैट टीचर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस एंड पीपल हु आर इनटू यूजिंग अ लॉट ऑफ वोकल कॉर्ड्स लाइक मी, उनके लिए अगस्त से ही एसोसिएशंस एंड आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी यानी कंटेंटमेंट, जो उनको काफ़ी उसके आगे कंटेंटमेंट देगा, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़। और मैं अगर रिकग्निशन कार्ड को निकालूं इसके एवज में, तो कहने का मतलब है कि आपको जो आपने हार्डवर्क किया होगा और जितना वेट किया होगा एज कम्पेयर टू अदर डेक्स, यू वुड सी दैट योर प्रोग्रेस इज मच बेटर as compared to others. And why should we compare ourselves with others? In fact, जो हमारा पिछले का ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा उसमें भी हम अपने आप को many times बेटर एक्सपेक्ट करेंगे और फाइंड करेंगे कि हम काफ़ी सेटल्ड पैसे और करियर वाइज और पोजीशन वाइज यहाँ हो जाते हैं। पार्टनर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको काफ़ी अच्छा इसमें मिलेगा। तो अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा दैट हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं और स्पेसिफिक नहीं जा रहे। तो अगर मैं इस कार्ड में समझने के लिए ये निकालूं कि कैसे ये क्लोजेस्ट जा सकता है, तो जिन लोगों को इमोशनल विड्रॉल या वूंड्स या रिलेशनशिप से दिक्कतें रही, उन लोगों के लिए हीलिंग टाइम और नए रिश्ते की होप और शादी ये फिक्स है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। जिन लोगों को जॉब में डिसकंटेंटमेंट रही, शिकायतें रही, उनके लिए जॉब, प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चेंजेस, जैसा कि मैंने कहा बाय द एंड ऑफ से आई वुड से अगस्त, एज आई मेंशन्ड, वुड बी बेटर मंथ टू फोकस अपॉन। और जिन लोगों के बर्थ मंथ अगर फॉल करते हैं अगस्त में, उनके लिए ये रीडिंग काफ़ी रेजोनेट करनी चाहिए, बिकॉज ये रीडिंग टेक्निकली इस तरह की साउंड रखती है कि अगस्त में जिनके बर्थडेज पड़ेंगे उनके लिए शिफ्टिंग ऑफ स्टेट, शिफ्टिंग ऑफ कंट्री एंड गुड रिजल्ट्स कमिंग आउट इन फ्यूचर, जिसमें कि हम देखेंगे कि हमारे एसेट खरीदे जाते हैं, शादी और एक अच्छे पार्टनर का आना और एक साउंड जॉब का आना निश्चित ही है। तो विद दिस I will take out the final guidance for deck number 3. So deck number 3, जैसा कि रीडिंग में अब तक हमने बात किया है, wait for you've drawn oracle.
So wait for the important information to be revealed, wait for that angelic guidance, wait for that small signal. And मैंने वो months आपको बताए हैं जिसमें कि आपको ये information मिल सकती है या मिलनी चाहिए. For more personalized and detailed readings, you will have to contact us so that we can do more month by month reading for you. And if you resonate with us, please do leave feedback and like, share, and subscribe our channel. People who believe in oracle reading would know that numbers के through और symbols के through या छोटे छोटे signages के through the angelic message are delivered to us. Alright, so don't forget to like, share, and subscribe our channel. Thank you so much. This is Usha signing out. Bye bye.